السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، آئیے آج میں آپ کو ایک کڑوا سچ دکھانے جا رہا ہوں، سچی حقیقت دکھانے جا رہا ہوں۔ نور حسن کو جو یہ لوگ گالیاں بکتے ہیں، یہ خود نہیں بکتے بلکہ کچھ بھائیوں کو پیسے دے دے کر گالیاں بکوائی جاتی ہیں۔ اب کسی کو یار فری میں پورے دن کی مزدوری مل رہی ہے تو 10-5 منٹ آدھا گھنٹہ وہ سوچ رہا ہے کہ یار گالی دے کے 200 روپے مل جا رہے ہیں تو کیا برائی ہے، تو اس لیے وہ سوچ کر پتہ نہیں کیا مجھے کال کرتا ہے اور گالی بکنے لگتا ہے۔ خیر الحمدللہ اس بھائی نے اپنی غلطی کا کیا اظہار، اپنی غلطی کا احساس کیا اور الحمدللہ توبہ کر لی۔ آپ اس آڈیو کو پورا ضرور سنیں۔ اور ایک بھائی نے کہا ایک کتاب کی دکان پر جا کر، ایک کتب خانے پہ جا کر کہ تم نور حسن برکاتی رضوی سے بات کر کے اپنے آپ کو، اپنی جماعت کو، اپنے اکابر کو اگر صحیح ثابت کر دو یا نور حسن کو اس کے عقیدے سے غلط ثابت کر دو تو میں تمہیں 50,000 روپے کا انعام دوں گا۔ خیر اس گفتگو کو آپ پورا سنیں اور جو ہے اپنے سچے دل سے جو ہے اس کا فیصلہ کریں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ بس فیصلہ آپ کو کرنا ہے مسلمانوں، کیونکہ آپ میرے لیے ایک جج ہیں۔ میں عوام اہل سنت کو، عوام کو میں جج مانتا ہوں، تو فیصلہ جج کو ہی کرنا ہوتا ہے۔ دو وکیل لڑتے ہیں مگر فیصلہ جج کو ہی کرنا ہوتا ہے۔ آپ جو ہے اس کا فیصلہ کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون حضرت؟ جی میں یاسین بول رہا ہوں حضرت۔ سید یاسین صاحب؟ نہیں سید نہیں ہوں، اجمیر ہوں۔ مطلب جی میں کوئی عالم نہیں ہوں حضرت، میری بات سنیں۔ سنی انفی بریلوی؟ ہاں جی ہاں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت۔ ہاں ہم بھی اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شکریہ جزاک اللہ حضرت۔ ہاں کب سے فون لگا رہا تھا، بہت دنوں سے، معافی چاہتا ہوں آپ کو۔ آپ نے شاید بولا تھا مغرب کے بعد آپ کسی کا فون نہیں اٹھاتے، اچھا تو ابھی فون کرنے کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ لیکن ابھی جیسے آپ کو رنگ ماری ہے میں نے، آپ کو جو میں نے فون کیا ہے، ہاں وہ میں نے ایک دیو بندر کو آپ کا نمبر دیا ہوا ہے۔ اچھا مجھے؟ ہاں نہیں اس کو دے کے آیا ہوں میں۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت اچھا کیا۔ ہاں اس نے کیا تھا، مغرب کی نماز کے پہلے اس سے بحث ہوئی تھی تھوڑی میری، اور آپ کی کیا ہے جو ویڈیوز آتے ہیں جو میں پڑھتا رہتا ہوں، اس کو سنتا رہتا ہوں۔ اچھا تو اس کے اندر میں ابھی اس کو بول کے آیا ہوں، اگر یہ بندے کو آپ غلط ثابت کر دو گے تو میرے طرف سے 50,000 روپے کا انعام آپ بولو تو میں آپ کو 50,000 کا انعام لگا دیا آپ نے؟ ہاں تو کیا ہے یار، آپ صحیح بات ہے، اگر 1 لاکھ یا 1 کروڑ کا بھی لگاتے تو الحمدللہ۔ یہاں تو دیکھیے ہماری جماعت کا نام لیں، میرا نام نہ لیں۔ ہاں ہمارے کسی بھی عقیدے سے ہم کو تم غلط ثابت کر دو اور یہ انعام ہے ہماری طرف سے، یا پھر ہم تمہیں غلط ثابت کریں گے، تم توبہ کرو۔ ہاں نہیں تو اس نے کیا بولا کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارے پیسوں کی وہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی آپ کو اگر محبت کروں گا آپ سے، اگر آپ اس سے گفتگو کر لیں گے اور آپ جیت گئے تو میں آپ کی جماعت کے اندر شامل ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی کبھی مت بولنا یہ ورڈ جملہ کہ میں تمہاری جماعت کے اندر شامل ہو جاؤں گا، کیونکہ وہ رہی جہنمی جماعت اور ہمیں جنتی۔ ارے حضرات میرے کو معلوم ہے، میں اس کے اندر جا کے آیا ہوں جی برابر ہے،
इसके अंदर मैं जाके आया हूँ। और दूसरा क्या, इनकी जो बयानात होते हैं, जो एलफेल हदीस सुनाते हैं लोग, जी बराबर है। अभी एक देखो बड़ौदा के अंदर में, बड़ौदा से बोल रहा हूँ, जी। गुजरात का, बराबर है। तो वहाँ जो मस्जिद है धूल लोयावाड़ वाली मस्जिद, अच्छा बराबर। अभी जी उसके अंदर जो जैसे कि जोहर की नमाज होती है, जी जोहर की नमाज के बाद ये कुछ हदीस सुनाते हैं, जी बराबर है। अभी उसके वो हदीस के अंदर वो जी। जो मुफ्ती है, अनस मुफ्ती करके है, अच्छा उसने हदीस ऐसी पेश की थी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से, हाँ कि दुनिया के अंदर अगर सबसे अहम रिश्ता है तो जी। वो शोहर और बीवी का है। हाँ अभी मैंने ठीक है सुना, अभी कोई भी इंसान होता है, अगर बीवी और शोहर का रिश्ता अहम है तो क्या माँ को कल जाके घर से निकाल देना चाहिए क्या? अगर जी। माँ का रिश्ता अजीम है या बीवी शोहर का रिश्ता अजीम है? शोहर का रिश्ता अजीम होता है। इंसान की वजूद के अंदर सबसे अहम रिश्ता किसका होता है? माँ बेटे का होता है। अच्छा हजरत, एक भाई का कॉल आ रहा है, लाइन पे लेता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह हजरत। जी जी हजरत, इनको बात कीजिए, बहुत घबराए हुए हैं, मार पीट कर रहे हैं इनके लोग, इनको मारपीट कर रहे हैं? हाँ बात कीजिए हजरत, हम बहुत घबराए हुए हैं। मैं समझ नहीं पाया हजरत, मारपीट मतलब? हाँ बोलिए हाफिज साहब। हमको ये लोग परेशान कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप उस जमात के बारे में गाली दिया है, बहुत ऐसे ऐसे किए हैं। हाँ उस जमात में जाके तुम लोगों के पीछे नमाज नहीं पढ़ेगा, नहीं कुछ करेगा, बहुत ऐसे हमको भटकाने की कोशिश याद कर रहा है ये लोग। तालबा की जमात क्या होता है भाई? तलबा? हाँ ये तालबा की जमात क्या हो रहा है? ये लोग सोच रहे हैं कि ये आज तालबा की जमात में भेज देने के लिए। देखिए देखिए, पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको तंग कौन कर रहा है, अहले सुन्नत बरेलवी या देवबंदी? देवबंदी। देवबंदी। किस वजह से परेशान कर रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, वो बताइए। हमने बोला है कि हम इस जमात को छोड़कर मैं अहले सुन्नी जमात को कबूल करेंगे। तो वो तंग किस वजह से कर रहे हैं? मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो भी आप मुझे बताइए। मोबाइल छीन ले रहा है, मोबाइल छीन के बंद कर दे रहा है ये लोग। मोबाइल छीन के करेगा क्या वो? मोबाइल छीन ले रहा है, कमीने लोग बंद कर दे रहा है, गाली दे रहा है हमको। हाँ बोल रहा है तुमने नूर हसन को गाली दिया था, तुमने ये किया था, वो किया था, वो तुमको कभी माफ नहीं करेगा। ये देखिए, मैंने तो आपको माफ कर दिया, मैंने तो आपको माफ कर दिया, मगर अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर लीजिए। अगर आपको कब्र में सुकून चाहिए और जन्नत चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल को आप राजी करो। मुझे जो आपने कहा मैंने उसको माफ किया। मेरे तक की जो बात थी, हजरत सुने, मैं आपको समझाता हूँ जी। ऐसे जबान से हम गाली नहीं दे सकते थे, यही लोग ये शैतानों के भटकाए दे हमने आपको जलील किया और गाली दिया, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है इज्जत अता फरमाता है और जिसे चाहता है जिल्लत और रुसवाई में गिरफ्तार करता है। ठीक है, मैं दुनिया के किसी भी खबीस किसी भी शैतान से नहीं डरता। आपने देखा होगा कि वकील की भी ऑडियो पड़ी हुई है, समझे, एडवोकेट LLB, जो कि हर एक को घुमा देता है, अच्छे को बैंड बाजा बजा देता है, वकील एडवोकेट, समझे। और पुलिस वाले, दरोगा पता नहीं कौन कौन, ग्रेजुएट, ये वेट वो वेट, पता नहीं कौन कौन धमकी देते हैं। मैंने बहुत धमकी देते हैं, समझे जनाब, कुछ कर पाते नहीं। आपने भी मुझे ऐसे ही बोला, मगर मैंने आपकी बात को नजरअंदाज कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि दुनियाए देवबंदियत के जितने भी बड़े से बड़े शैतान हैं, मुक्ति जिनको कहते हैं, देवबंदी मुक्ति, इनमें जलजला तारी हो गया है, जलजला बर्पा हो गया है। इनके पैरों के तले की जो जमीन है ना, ये झूम रही है झूले की तरह उनके लिए। पूरी दुनिया में कोई देवबंदी बाकी नहीं रहा जो मुझसे अदब और एहतराम के दायरे में रहकर बात कर ले, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ही हक पर हैं, अहले सुन्नत वल जमात, मेरा ये दावा है। अगर है कोई देवबंदी दुनिया में, मैंने तो पूरी दुनिया के देवबंदियों को चैलेंज किया है, तो वो आए निकल के और मुझसे बहस मुबाहिसा करे, मुझे मेरे अकीदे से गलत साबित करे।
जी जी जी। अगर जन्नत चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल की रजा चाहिए, तो अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर लो। मुझे जो तुमने कहा मैंने माफ किया। अब अपनी कब्र का इंतजाम करो, देवबंदी से तौबा करो, ठीक है? हम तो तौबा कर दिया है नूर हसन भाई, हम तौबा कर दिया। चलिए माशाल्लाह। कहाँ की? माशाल्लाह मैंने तौबा कर दिया हूँ। अभी हमारे बगल में अहले सुन्नी मस्जिद थी, हाँ हाँ, उसमें जाके हमने बोला कि ऐसा ऐसा बात है। मैंने नूर हसन भाई को गाली उली दिया था, हाँ ये लोग हमको दबा रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहा है। जी, उन्होंने बोला कि तौबा कर दीजिए आप। हाँ आज ये बोल रहा है कि गांव से हटा दिया जाएगा, तुमसे बात नहीं करेगा, जो भी है तुम्हारे वालिदैन नहीं बात करेगा। तो बोला नहीं करने दीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं, हमको आखिरत चाहिए। एक और बंदे ने आज तौबा की है, जिसका पूरा घराना, पूरा खानदान, पूरा गांव देवबंदी है, और उसको यहाँ तक बोल दिया कि तू जहाँ चाहे वहाँ चला जा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह उस बंदे की हिम्मत को सलाम। उस बंदे को देखो कि उसने भी कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं अहले सुन्नत वल जमात को कबूल करता हूँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ। और दोपहर तौबा की है, इंशाल्लाह 2-4 दिन में वो ऑडियो पहुँच जाएगी। कल पहुँच जाए, परसों पहुँच जाए। ये तौबा किया हूँ, इन लोगों की ज्यादा जलन हो रहा है, और बोल रहा है मुझे मालूम है, तालबा की जमात में इसको भेजा दिया जाए कि ये उधर से सुधर के आएगा कि नूर हसन की बात फिर नहीं मानेगा ये लोग। ऐसा करो, जो आपको तंग कर रहे हैं उनमें से बोलो, अगर तुम में किसी में इल्म है, अगर सलाहियत है, तो नूर हसन से बात करो, उसके बाद मुझे कुछ कहो, ठीक है? नूर हसन तुम्हें और तुम्हारे जो मौलाना है, मुफ्ती है, यही लोग है, जो सबसे बड़ा शैतान हो वहाँ का इब्लीस, उससे मेरी बात कराओ। वो लोगों को बोला हो बात कर लो, बात नहीं कर रहा है, करेगा भी नहीं, हिम्मत नहीं है। पूरी दुनिया के देवबंदी थर्रा रहे हैं, हमको कर रहा है। मुफ्ती को मैंने वो वीडियो देखा हूँ जिसमें वो बोल रहा है कि शंकर जी मेरे बाप है। इलियास कासमी शैतान। एक बात बताऊं हजरत, कम से कम नाम से ही पहचान हो जानी चाहिए आपको। कहाँ है देवबंदी? देव के माना शैतान भूत, और बंदी के माना पुजारन, यानी शैतान की पूजा करने वाले लोग। जी जी। और बाबा रामदेव आया था, वो वीडियो देखा है आपने? बाबा रामदेव ने खुलेआम बोला है दारुल उलूम देवबंद मदरसे में कि मैं ऐसी पावन धरती पर आया हूँ, यानी ऐसी पाक जगह पर आया हूँ जहां पर देव की बंदगी की जाती है। वहां से किसी शैतान ने उठ के ये नहीं बोला कि बाबा रामदेव जी आप क्या बोल रहे हो। ये बोल ही नहीं सकता, इसके अंदर दम ही नहीं है। आप हिम्मत से काम लीजिए, और डरने की जरूरत नहीं है। मौत उस वक्त आएगी जबकि आपका वक्त लिखा है। आपकी मौत आने से पहले 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 आपका रिस्क पूरा होना है, और मोमिन मौत से नहीं डरता। मौत तो मोमिन के लिए एक तोहफा है। मौत मोमिन के लिए एक तोहफा है। मोमिन अगर जिंदा है, ठीक है, मोमिन अगर जिंदा है और जिहाद कर रहा है, ये भी एक जिहाद है। इस्लाम के दुश्मनों से लड़ना ये भी एक जिहाद है। अपने नफ्स से लड़ना ये भी एक जिहाद है। और सबसे खतरनाक है अपने नफ्स से जिहाद करना। दूसरे से लड़ना बड़ा आसान है, तलवार लेके मैदान में लड़ना बड़ा आसान है, मगर अपने नफ्स से लड़ना बड़ा कठिन है। आपने अपने नफ्स से भी लड़े आप, और आप अपने बिरादरी के लोगों से भी लड़ रहे हैं, तो ये आपके लिए एक जिहाद है। और मोमिन जिंदा है तो गाजी कहलाता है, और मर गया तो शहीद। समझे जनाब? आपका नाम क्या है? क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम मोहम्मद हशमुद्दीन आलम है। जी जी, मोहम्मद हशमुद्दीन साहब, आप किसी भी चीज में घबराएं नहीं, हम आपके घर तक पहुंच सकते हैं। जी समझे हजरत? जी जी। मैं कहीं से कहीं तक इनका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। जहां ये चाहेंगे वहां पहुंचूंगा। लखनऊ के एक शैतान ने मुझे मारने की धमकी दी थी। जी जी। मैंने कहा मैं सुबह पहुंच रहा हूं और तू मुझे मारना। मैं जब वहां पहुंचा,
میں جب وہاں پہنچا میں نے کہا میں لکھنؤ آ چکا ہوں اور اب تیرے پاس آدھے سے 1 گھنٹے تک میں پہنچنے والا ہوں. بولا میں آپ سے نہیں ملوں گا, میری ماں مر گئی. تو حق جو ہے نا وہ سر چڑھ کر بولتا ہے, مومن موت سے نہیں ڈرتا. یہ سب ان کی دھمکیاں ہوتی ہیں, گیدڑ بھپکیاں ہوتی ہیں. جب بندر کھو 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 کرتا ہے نا دیکھ کے, اور جب ڈنڈا لے کے اس کے طرف کو دوڑو تو پیڑ پہ چڑھ جائے گا یا بھاگ جائے گا؟ سمجھے حضرت؟ کو سکھا رہا ہے کہ تو جس جلوس کو تم نے شراب پی کے ناچنے والا بولا, جس صدر کو تم نے بولا کہ یہ مورتی ہے, اسی میں جا رہا ہے تم تو کفر کرنے جا رہا ہے. ہم کو یہ لوگ سمجھا رہا ہے. دیکھیے آپ کہہ دیجئے کمینوں, جو بھی میں نے بکا, جو بھی میں نے کہا وہ تمہارے کہنے پر کہا یا پھر میں نے انجانے میں کہا. ٹھیک ہے, انجانے کی غلطی کی معافی ہے اگر آپ سچے دل سے توبہ کر لیں. ٹھیک ہے, جیسے حضرت حر یزید کے ساتھ تھے مگر صرف غلط فہمی میں تھے. جب ان کے سامنے حقیقت آئی تو امام حسین کے قدموں میں آ کے گر گئے اور کہنے لگے کہ آپ مجھے معاف کر دیں اور مجھے جو ہے رن میں جانے کی اجازت دیں. سمجھے؟ اور کہا کہ میرے بات کر رہے ہیں اور ابھی روم میں بند کر کے بات کر رہے ہیں. یہ شیطان لوگ جب دیکھے گا موبائل چھین لے رہا ہے, پٹک دے رہا ہے موبائل کو, ایسے کر رہا ہے. آپ کی آواز مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ ابھی اندر سے رو رہے ہیں. ان کو ستایا جا رہا ہے. ہمت رکھیں آپ انشاءاللہ. دیکھیے یار میں تو اتنے بڑے گاؤں میں رہتا ہوں, یہاں پہ بہت سارے ہیں, میں نہیں ڈرتا موت سے. میں تو ان کو کہتا ہوں, میں نے اتنی خطرناک سزائیں بتائی ہیں, میں نے خود اپنے لیے سزا بتائی ہے کہ تم مجھے غلط ثابت کر دو, بیچ چوراہے پہ کھڑا کر کے سزا دو, قتل کر دو, پنجوں کی طرف سے مجھے کاٹتے ہوئے دیکھا, ایک دم نہ مارو, جو تمہیں سخت سے سخت سزا لگے وہ دو مجھے. مگر اگر میں صحیح ہوں, غلط نہیں ہوں, تو پھر تم سچے دل سے توبہ کرو, مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. میں تو بولا ہوں کہ اگر میں غلط ہوں تو جو سزا دینا ہے کر دو. ہاں, یہ لوگ تو اس پر بھی راضی نہیں ہے اور بول رہا ہے کہ تم اس میں جا ہی نہیں, اس میں جاؤ گے تو خراب ہو جائے گا. بس اتنا کیجئے, آپ بس اتنا کیجئے, آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حضرت بلال کا واقعہ یاد ہے. حضرت بلال کا واقعہ یاد ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے کتنی سزائیں دی گئی ہیں بہت اسلام قبول کرنے پر؟ بہت زیادہ. بس ارے حضرت, جس طرح میں کام کرتا ہوں نا ایک درد لے کر, مجھے کتنی گالیاں ملتی ہیں, کتنی دھمکیاں ملتی ہیں, یہ آپ نے خود اندازہ لگا لیا ہوا کتنی آپ نے مجھے کیسے کیسے کیا بولا. میں نے کوئی بات نہیں ہے, اس کو میں دوبارہ آپ کو میں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا ہوں, مگر میں ایک نور حسن بھائی ہم نہیں دے سکتے تھے. یہ کم وقت کی وجہ سے, یہ کمینے کی وجہ سے ہم کو بولا کہ نور حسن دیوبندی کو بہت زیادہ گالی دیتا ہے, تم گالی دو. اور دیکھو آپ نے میرے پرسنل پہ کتنی آڈیو بھیجی, میں نے کتنا برداشت کیا, میں نے سب صبر کیا, اور میں نے انجان سمجھ کے آپ کو جواب نہیں دیا. نہیں, انجان سمجھا, میں نے کہا بیچارہ انجان ہے یار. اور میں دوسری بات واٹس ایپ پہ بات ہی نہیں کرتا, میں صرف اونلی فون پر, تاکہ میں دنیا بھر کو دکھا سکوں. میں نے بولا ہوں جب ہم کو پکڑ کے لے گیا ہے تو میں بولا ہوں ان لوگوں کو, ہاں جاؤ نور حسن بھائی سے بات کر لو تھوڑا سا, تم لوگ کا نکل جائے گا جو بھی ہے, جو ثابت ہو جائے گا تم لوگ کا. ان کو بولو شیطانوں, ان کو بولو کہ تمہارا دنیا میں جو سب سے بڑا عالم ہو اس کو پکڑ کے لے کے آؤ. ٹھیک ہے, یہ خیروا مدرسہ میں ہے یہ لوگ, اور آپ نے اپنے مدرسے کا پورا ایڈریس بتایا تھا. ہاں سمجھے, آڈیو میں ہے پورے مدرسہ کا ایڈریس بتایا گیا تھا میں نے. جی نور حسن کو آپ, میں پھر کیا بولوں, بات چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی. الحمدللہ ایک اور ایسے ہی تھا, اس نے بھی معافی مانگی. ایک ہمارے مراد آباد کا تھا, یہ کیا نام ہے, انور کمال, اس نے بھی معافی مانگی, مگر معافی مانگنے کے بعد پھر وہ اپنے اسی ہٹ دھرم پہ آ گیا. سمجھے, ہدایت ہر کسی کو نہیں ہوتی ہے.
उसने माफी मांग ली, माफी मांगने से हाँ अल्लाह जिसको हिदायत देगा वही जाएगा, बेशक। जिसको हिदायत नहीं देगा वो नहीं जाएगा। जी मुझे अल्लाह आज हिदायत दिया, मैंने अहले सुन्नी जमात को कबूल किया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपसे बड़ा खुश हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ आपके लिए। अल्लाह ताला आपको इन शैतानों के शर से महफूज रखे और इन तमाम बद मजहबों से दूर रखे। जी तलबा की जमात क्या होता है? ये तलबा की जमात ये है कि ये आपको या तो दारुल उलूम देवबंद के मदरसे में दोबारा से पढ़ाएंगे या क्या करेंगे, या फिर जमातियों के साथ भेजेंगे आपको। क्या करेगा क्या ये लोग? कुछ भी होने का नहीं है। मैं खुद 15 साल ज्यादा इन्हीं शैतानों में रहा हूँ, इनकी रग रग से वाकिफ हूँ। अभी अभी बिल्कुल अभी आपका कॉल आने से पहले पहले एक मुफ्ती को जलील किया है, समझे हजरत? उमैर कासमी बहुत बड़े बड़े बात बोलते हैं चैनल खोलकर। उमैर कासमी को पसीना आ गया था। हाँ, तो मैं इस यूट्यूब पर जो जा रहा है इस पर आप बोल रहे हैं उमैर कासमी को, जब आपने ऐसे करते हो तो अपने देवबंद का मौलाना को समझाइए ना, मुफ्तियों को समझाइए कि अरे मुफ्ती उमैर कासमी के छक्के छुड़ा चुका हूँ भाईजान। मुफ्ती उमैर कासमी मेरा नाम से निकालिए, नूर हसन रजवी, मुफ्ती उमैर कासमी 4 बार फोन कट के भागा है, पसीने पसीने हो गया है वो। और उसने कहा नूर हसन भाई अगर यही सवाल करना है तो मत करो। मैंने कहा मैं करता ही रहूंगा। जब ये चीज नबी को नहीं मालूम तो तेरे फिर घर के आलिम को, तेरे घर के बुजुर्ग को कैसे मालूम? ये कोई बात है। पसीने आ गए उसे। मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में लगाया हुआ है वो। रात भी मैंने उसको कॉल किया लाइव में लेके, रात में फेसबुक पे लाइव आया था, समझे? मैंने कॉल किया, मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में पड़ा हुआ है। एक भाई ने और किया, उनका भी ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ है। जमशेद भाई का आपने नाम सुना होगा, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हैं, काम करते हैं, समझे हजरत? दुनिया भर में कोई देवबंदी नहीं है। मैंने अपने गांव के को नहीं, अपने शहर के को नहीं, अपने इलाके वाले को नहीं, अपने स्टेट वाले को नहीं, बल्कि अपने हिंदुस्तान वाले को नहीं, मैंने पूरी दुनिया के लोगों को चैलेंज करके बोला है, पूरी दुनिया के देवबंदियों को। है किसी में हिम्मत तो आए नूर हसन के सामने। कोई आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। बस अल्लाह ताला ने आपको हिदायत दी है, आपने इस चीज को दिल से एहसास किया है। और देखो तो अभी की बात है, अभी की मंदिर को इन शैतानों ने चंदा दिया है। मैंने देखा हूँ उस वीडियो को, मैंने देखा हूँ, देखा है ना आपने? मैं जिस तरह से जलील करता हूँ ना इन लोगों को, ये मुझे गालियां बकवाते हैं। इसी तरह से आपको भी उकसाया होगा, आपने भी अनजाने में मुझे गाली बकी, मगर मैं कितना सहता हूँ। है हमको अभी तो कितना कितना चमाट पड़ गया है उसमें नहीं जाए बोल के। बहरहाल आप देखिए, बोला है आपको अपनी कब्र में सोना है, आपको अपनी कब्र में सोना है, आपको अपनी कब्र में सोना है और किसी दूसरे को अपनी कब्र में सोना है, ठीक है? जो नबी का वफादार है वो जन्नती है और जो नबी का गद्दार है वो जहन्नमी है। तो अब आपको फैसला करना है, आपको जन्नत में जाना है कि जहन्नम में जाना है। जन्नत में जाएगा। तो जो नबी की शान में तौहीन करेगा वो कहाँ जाएगा? जहन्नम में जाएगा ना। और जो नबी की शान व अज़मत को बयान करेगा वो कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा। आपके वालिद की आप तारीफ करेंगे या तौहीन? तारीफ करोगे। अच्छा, कोई आपके वालिद का दुश्मन है तो आपके वालिद की तारीफ करेगा या तौहीन? तौहीन करेंगे। तौहीन करेगा। तो जो मेरे नबी की शान व अज़मत को बयान करता है वो मेरे नबी का हुआ क्या नहीं हुआ? तो जब नबी का है तो जन्नत में जाएगा कि नहीं? जाएगा। जाएगा। अच्छा, जो नबी की शान में तौहीन करता है क्या वो नबी का हुआ? नहीं हुआ। जहन्नम के तरफ से गिरेगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बस फैसला आपको करना है, मेरा काम सिर्फ आपको समझाना था, बताना था, मनवाना ना मेरा काम है ना किसी और का काम है। आदमी करता हुआ है जो उसके खुद के अपने दिल को लगता है। तो आप एक काम कीजिए, ऑफिसर बंद कर रही है, किसी की मत डरिए। कोई अगर आपको तंग करे तो नूर हसन भाई, नूर हसन को आप याद रखें, जब तक जिंदा है नूर हसन, दुनिया देवबंदी की सांस बंद करके रखूंगा इंशाअल्लाह। कोई भी आपको तंग करे तो आप फौरन मुझे कॉल कीजिए इंशाअल्लाह।
जी हजरत, कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है, पूरी दुनिया में जलजला है। बेशक हजरत, ये बात करने के लिए तैयार नहीं थे हजरत, खाली पीली दूसरों को ये उकसाते हैं, दूसरों को कह के गालियां बकवाते हैं। एक और कौसर देवबंदी था, कौसर देवबंदी, उसके घर वालों ने मारा, जूतियां पड़ी उसको। तो आपको गाली दे रहा है, अब आपको गाली बक रहा है, वो अब हमको गाली दे रहा है। बस ये ऐसे ही होते हैं ये लोग। अच्छा, ये रहने वाला कहाँ का है, जरा इसका पता निकाल के भी मुझे दो। वो अभी गाली दे रहा है, अभी हमको फोन करके गाली दे रहा है। रहने वाला कहाँ का है वो? क्या मालूम, जगह नहीं बता रहा, सीधा गाली से बात कर रहा है। हाँ, उसका नंबर में रतन भाई को दीजिए ना आप। नहीं है मेरे पास उसका नंबर। हाँ, उसने मुझे शुरुआत में कई महीने पहले गाली बकी थी। पता किया था वो कहाँ का है? वो सहारनपुर देवबंद के आसपास का कहीं का रहने वाला है, मुजफ्फरनगर का बता रहा था कहीं का। वहाँ अपना साथी नहीं है क्या वहाँ पर है? तो उसको घर भेजिए 2-3 आदमी को। उधर असल में ऐसा गाली बोक रहा है। उधर अभी उसका पता नहीं चल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह पता निकाल लेंगे हम इंशाअल्लाह। जी जी, हाँ। गाली बोक रहा है। और उसका हाँ, और उसका जो काम है वो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस के जरिए से होगा, समझे हजरत? हेलो, जो हमारे हिंदुस्तान, हाँ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, जी 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 जी, मैंने आपका जो नंबर दिया है 200 रुपए दिया गया। आपको 200 रुपए दिए गए थे? 200 रुपए दिया गया था गाली बकवाने के। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बताइए, 200 रुपए में गाली बकवाई जा रही है नूर हसन को। औकात दिखा रहे हैं किराए में खरीद के बताइए। अल्लाह, हमारे अच्छा ये बताइए, क्या हकीकत बोल रहे हैं कि 200 रुपए आपको दिए गए? कसम बोल रहा है, अल्लाह गवाह है, वो हमारे जो साथी है 200 रुपए दिया गया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखिए यार, कौन आदमी नहीं मान जाएगा यार, सोचेगा यार मुझे क्या जा रहा है, 1 महीने का रिचार्ज चलेगा। हाँ नहीं नूर हसन साहब, ये लोग का काम यही है। मैंने पैसा देने की बात करी है, तो ये लोग पैसा लेने की बात नहीं, वहाँ पैसे दे रहे आपको गालियाँ देने की। जी जी जी, ये ईमान नहीं, ये ईमान के अंदर है ही नहीं। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कभी हो ही नहीं सकते। और एक हजरत मेरे को वहाँ जो हाफिज था वो बोल रहा था कि बोले अपने जो भी कलमा पढ़ने वाले, मैंने हिंदू जो हिंदू पंडित भी कलमा पढ़ते हैं, उसको इस्लाम में नहीं किया जा सकता है, वो मोमिन नहीं कहलाता है। जब तक वो कुफ्र करता है वो काफिर ही कहलाएगा। मैंने अभी मैंने उसको बोला है कि आप काफिर को, आपकी जमात बोलती है काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए, बराबर है। मैंने क्या, काफिर को काफिर ही कहना चाहिए जब तक वो कुफ्र करता है, बराबर है। बोले ये मैंने क्या, ये आला हजरत, आप ये जो मैंने आपका नंबर दिया है वो मुफीद किताब घर है, उसकी 4 दुकान है। दरअसल था क्या, मैं वहाँ अत्तर लेने गया था, बराबर है। तो एक जो थे, कोई आलिम थे शायद, पता नहीं ये कौन है, लेकिन उन्होंने एक कुरान मजीद उनसे मांगी, तो उसके अंदर उन्होंने बताया कि बोले तर्जुमे वाली चाहिए, तो बोले हाँ, तो बोले कौन सी चाहिए? सब ये अशरफ अली थानवी, बराबर है। तो मैं समझ गया कि ये भाई जमाती है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप जमाती हो? बोले हाँ हम तो जमाती है जी, बराबर है। फिर मैंने थोड़ी बहस की उसके अंदर, हाँ। बराबर है। बहस के अंदर मैंने क्या, फालतू में आप जो भी हदीस कहते हैं, बराबर है, अशरफ अली थानवी मैंने क्या जो है वो हमारे हुजूर के बारे में बहुत ऐसी बात उसने लिखी हुई है। तो बोले आला हजरत और अशरफ अली थानवी एक ही मदरसे के अंदर थे, बराबर है। बोले वो भी रहमतुल्लाह अलैह। मैंने क्या नहीं, वो आप रहमतुल्लाह कौन से वो हिसाब से आपने उसको अल्लाह के वली बता दिया? ये एकदम सफेद झूठ है, झूठ है। तो उसने क्या बताया, जब आला हजरत पढ़ लिख कर फारिग हो गए थे और फतवा भी दे दिया था, तो थानवी की रेंट नहीं संभलती थी। अरे उसने क्या बोला कि 2000 किताबें उन्होंने लिखी हुई है अशरफ अली थानवी ने, बराबर है। और अगर ये हलाली हैं और सच्चे हैं तो साबित कर दें, वरना अपने कौल से खुद नहीं। उसी पर से मगरिब के पहले में गया था वहाँ पे उसके पास, बराबर है। मेरी जेब में मोबाइल नहीं था। मैं दरअसल आपकी क्या ऑडियो में
सुनता रहता हूँ, बराबर। जी। फिर नमाज पढ़ने के बाद वापस उसकी दुकान पे गया, आपका नंबर दिया, मैंने क्या नूर हसन बरेलवी लिखा है, रिजवी नहीं लिखा है, बरेलवी लिखा है, बराबर। मैंने क्या ये बंदे से बात कर लो, आप करना चाहो तो आप करो, या आपका कोई भी मुफ्ती होवे या मौलवी होवे, हाफिज होवे या कोई भी मुहद्दिस होवे, उससे बात कर लो। अगर जी। ये इंसान हार जाएगा तो मैं आपको 50,000 रुपए का इनाम दूंगा। माशाअल्लाह। बराबर। अभी चेक मेरी जेब में नहीं है, आप बोलो। और दूसरी एक बात देखिए नूर हसन साहब, मेरी बात सुनिए। मैं जबान का इंसान, मैं ऐसा हूँ, मैं पक्का इंसान हूँ, बराबर। मैं झूठ कभी किसी से बोलता नहीं हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैंने उनसे कहा है तुम बात करना, मेरे को ऑटोमेटिक खबर पड़ जाएगी कि आपने बात करी है कि नहीं करी है, बराबर। अगर उसके अंदर आप जीतोगे मैं 50,000 रुपए का चेक आपको दे दूंगा। माशाअल्लाह। बराबर। बोले नहीं मैं बात नहीं करूँ, मैं नहीं तुम ही बात करो। बोले नहीं हम तो हमारे आलिम से बात, अरे मैंने क्या कोई से भी बात करवा लो, बराबर जी। कोई से भी बात करवा लो। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी बड़ौदा के अंदर से कोई भी फोन आए आपसे बहस के लिए, तो वो क्लिप जरा ये मेरे नंबर पे भेज दीजिएगा। हजरत बराबर। मैं तो भूल जाता हूँ और मुझे वहां से उठाने की इजाजत भी नहीं है, ना मैं उठाता हूँ। खैर, आपके पास अगर चैनल सब्सक्राइब है तो मैसेज पहुंच जाता है जब मैं ऑडियो डालता हूँ। नहीं मैं तो सब्सक्राइब किया हुआ है आपका। हाँ, तो हर भाई के पास मैसेज पहुंच जाता है और इसीलिए सब्सक्राइब किया जाता है ताकि पता चल जाए। बराबर बेशक। हाँ, इसका कोई वैसा तो हाँ, इसका कोई ये नहीं है कि साहब ये चैनल वाले को सब्सक्राइब करने का पैसा मिलता है या ये होता है वो होता है, सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए। नहीं, मैंने उससे कहा, मैंने क्या दो इंसान अगर मोबाइल में बात करते हैं तो अपने उसको सुनना चाहिए। तो उसमें दो बात करते हैं, उसके अंदर अपने को मालूम पड़ेगा बंदा कौन सी बात करिए, कौन सच्चा है कौन झूठा है, वो तो मालूम पड़ जाएगा। अपने तो तीसरे इंसान है, बराबर। अपने बातचीत क्या करनी है, जी। तो और देखिए मैं बार बार इनसे यही कहता हूँ, इन लोगों से, ये जो बदतमीजी करते हैं, बकवास करते हैं ना, मैं कहता हूँ देख, फैसला तुझे और मुझे नहीं करना है, फैसला आवाम को करना है, क्योंकि आवाम हमारी जज है। बराबर। नहीं, हमारी आवाम जज है भाई, मैं और तू वकील है और आवाम जो है वो जज है। नहीं मेरा तो भी फैसला मैं भी ज़हनी तौर पे इनके साथ थोड़ा क्या है कि चलता था, बराबर है। लेकिन अच्छा। जब से मालूम पड़ गया है कि हमारे हुजूर के बारे में बहुत अनाप, क्योंकि जरिया इस्लाम के अंदर कोई भी दाखिल होता है तो जरिए के हिसाब से होता है। अल्लाह के वलियों ने हमारी ये बहुत दुआ की है, तभी जाके हमको इस्लाम मिला है, बराबर है। उनकी दुआ के जरिए से इस्लाम हमको मिला है, तो हम उनको छोड़ कैसे थे। अगर किसी इंसान का हम पे एहसान होता है तो इंसान का एहसान थोड़ी भुला जाता है, तो जरिया है। बेशक देने वाली जात अल्लाह है, बराबर है, देने वाली जात अल्लाह है। लेकिन जो जरिया होता है, जरिए को अगर छोड़ देंगे अल्लाह नाराज हो जाएगा। बेशक, बराबर। जरिए को भी नाराज क्यों करना चाहिए। मतलब जो भी अल्लाह का वली है उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, आले रसूल की आल से मोहब्बत करनी चाहिए। और हम तो पीरी मुरीद वाले इंसान है। मेरे पीर का नाम है हाफिज इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो भी वो बहुत बड़ी हस्ती थी, आज भी है। उसने क्या बोला था मेरे को, मुफीद की था, बोले कि हुजूर तो मक्का मदीना में अभी भी है। मैंने कहा वहाँ भी यहाँ भी है। वो तो मैंने क्या है, वो तो वहाँ भी है यहाँ भी है। बोले नहीं यहाँ नहीं है, वो वहीं है। मैंने क्या फिर आपका नंबर मैंने दिया हुआ है, अब इंशाल्लाह देखते हैं गुफ्तगू हो जाएगी। अगर वो मैंने उसको एक बोला है, अगर तुम ईमान वाले हो, सच्चे इंसान हो, तो आप फोन कर दीजिएगा, बराबर है। अगर आप सच्चे होंगे तो उन्होंने बोला फोन करने के लिए? हाँ बोले मैं बात करूँगा। ठीक, कहाँ से बोलेंगे वो, कहाँ से? ये बड़ौदा से ही बोलेंगे, गुजरात से, बड़ौदा। अच्छा, गुजरात से। हाँ, गुजरात से बड़ौदा सिटी जो है, सिटी के अंदर से ही बोलेंगे। ये सांदलिया जो है वहाँ से बोलेंगे। या तो फिर उनकी क्या मुफ्ती है, वो पता नहीं कौन से मुफ्ती का उसने नाम दिया, अल्लाह बेहतर जानता है। उसको बोलो, अपने जानते, उसको बोलो कि उसका एक मुफ्ती बात ना कर पाए और उससे बड़े को देखे। अरे नहीं, वो तो हजरत वो किताब वाले हैं, चांदनी साहब की, इस्माइल देलवी की, सबकी किताबा वो लोग बेचते हैं, हमारे हजरत की भी किताबा बेचते हैं, बराबर है। इनके आप बात कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप मेरे को पूछ रहे हो किताब कौन सी है क्या है, तो ये इनसे इनका बात कर लेना। आपका जो बुका कपाट है भर लेना, और वो आपको बता देंगे कौन सी किताब में क्या लिखा हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल, बराबर ना, जी। ये भी बात है।
मैं तो जाहिल इंसान हूँ, इतना दीन नहीं जानता हूँ मैं, बराबर है, लेकिन मोहब्बत करना जानता हूँ, और मोहब्बत अल्लाह की जात से करता हूँ, अल्लाह के रसूल से करता हूँ, और अल्लाह के वलियों से करता हूँ। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह अजान हो रही है, नमाज पढ़ लेते हैं। हाँ ठीक है हजरत, बाद में बात करता हूँ फिर है। हाँ जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब हज़रात, नूर हसन रज़वी नेटवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास पहुंच सके और देवबंदियों का ओरिजिनल और बदनुमा चेहरा आपके सामने आ जाए। सुन्नी अंबिया इकराम की जिस कमाल को तस्लीम करते हैं, मानते हैं, वहाबी देवबंदी उसी कमाल को शिरक बताते हैं और अपने बुज़ुर्गों के लिए हर कमाल को तस्लीम करते हैं, अंबिया इकराम के कमाल को इनकार करते हैं। देखें इस वीडियो को।